poems Whoso Lists to Hunt by Sir Thomas White. Will be studying what is literary devices in the poem, and what is the structure of the poem, what is the formation of the poem, and will be analyzing with respect to new criticism, a formalist criticism. Will be analyzing this poem. So the second topic is heresy. Heresy mean belief, theory of paraphrase. एक क्रिटिक है, टीचर था, इसका नाम है ब्रूक। तो ब्रूक एक क्रिटिक था, उसने कुछ यॉर्डस्टिक बताई थी, कुछ उसने मेथड बताया था उसने, कि एक पोएम को क्या हमें उसकी बायोग्राफी से, उसकी ऑटोबायोग्राफी देखनी पड़ेगी, या उसकी बायोग्राफी देखनी पड़ेगी, या उसकी उसके उसके आइडियाज देखने पड़ेंगे, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल देखना पड़ेगा, उसका उसका बैकग्राउंड नॉलेज देखना पड़ेगा एक पोएम को क्रिटिसाइज करने के लिए, या जस्ट हमें उस फॉर्म या स्ट्रक्चर की जरूरत है जो पोएम के अंदर मौजूद है। क्या हमें जरूरत है पैराडॉक्स की, क्या हमें जरूरत है आयरनी स्टायर की, क्या हमें जरूरत है उसकी बैकग्राउंड नॉलेज की। सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज, he recommends certain method. So we'll see what he recommends. Anatomy of Criticism by Northrop Frye. It's a very beautiful book, and he has written 4 type of essays in this criticism. We'll see his 4 type of essays, what kind of essay he has written. So over here he has written some historical criticism. This book has been divided into 4 portions. So first is historical criticism, then we have ethical criticism, then we have rhetorical criticism, and then we have archetypal criticism. So we'll see archetypal criticism, especially with respect to BZU course. Life and work and biography of the Northrop Frye. So let's start from this poem. Have you studied this poem earlier? Have you studied this poem? Whoso lists to hunt, sir. I know where is an hind. So let me tell you little bit introduction related to this poem. This poem has been written by Sir Thomas White. Sir Thomas White, he belongs to Elizabethan age. He belongs to Elizabethan age. So this poet related to Renaissance age, he has brought concept of English poem from Italian poetry. Before that, before Sir Thomas White and White Surrey, so White Surrey, there was a person who was writing poetry. The name of that person was Petrarch. Petrarch was writing in the form of Sistat and octave. So octave was general information. It was information about the problem, and Sistat was basically solution. He writes his problem in 8 lines and he gives solution in 6 lines. But later, the same concept was taken by Sir Thomas White, who was English, in fact. So he went Italy. He was he was a royal person. He belongs to affair of England. He was dealing just like ambassador. So he visited many countries, and he visited France. He visited even Italy. So over there, he studied Petrarch, and he takes idea from Petrarch, and after that, he copying his idea. He's just translating from Italy to English. So from Italian language to English language, he started translating, and he started writing poems. So early poems were just a translation of Italian poetry, and that was specially model of Petrarch. Petrarch, he loved his beloved, and the name of that beloved was Laura. He was writing for her, and he is criticizing her that she does not love, she is not giving love, because he loves her so much and he deceived, and she is not good. His beloved just deceived him. So he writes problem in 8 line, and 6 line he gives solution. So same idea he copied. He started writing, and that time he loved one of the girl
The name of that girl was Anne Boleyn. Anne Boleyn was later taken by Henry VIII. Henry VIII was very cruel king. Henry VIII, he even charged around about 5 people that they are having illegitimate relation with Anne Boleyn. Anne Boleyn, she was friendly girl. She was having discourse and conversation with many people. Henry VIII does not like it. Henry VIII wants to just put all the people in trials who had been in contact with Anne Boleyn, and Mr. Thomas White was also one of them. So he also faced the trials of Henry VIII. Henry VIII was very cruel. He even killed his wives as well because he wants a child, male child. He was not having a son and he wants to get it at any cost. He was killing the wives and getting married, and he also married to Anne Boleyn. Ultimately, Sir Thomas White writes poetry to just have catharsis of his love. No, he's unable to love Anne Boleyn. Before that, when she was not married to Henry VIII, she comes to him, she loves him, and they both share their feelings. But what happens now? No, she is the wife of Henry VIII, who is very cruel. And Thomas White, he was afraid of Henry VIII. He can't express his love, because if he expresses his love, she can be hanged, he can be hanged, and Anne Boleyn will have to face the music as well. So that is why he's doing catharsis through his poetry. He's taking the model of Petrarch and just copying and sharing and writing his poetry. Then he shares with his friend like Surrey, Earl of Surrey, and then further they read in their groups. So they are just doing like that. Now, in his poetry, you will find that he is giving his idea how Henry is cruel. He has used in his poetry extended metaphors, alliterations, assonance, enjambments, personifications, imagery, and metaphors. So these are the literary devices. These are figure of speech. So these figure of speech are found in his poetry. So let's read this poetry and hope you will enjoy this poetry. We have to find rhyming scheme as well. Whoso lists to hunt, I know where is an hind. First of all, I'll read and will be getting idea of the poem, and after that I will translate line to line text. Whoso lists to hunt, I know where is an hint. But as for me, alas, alas जैसे होता ना, alas, बिल्कुल इसी तरह, alas, I may no more. So here poet is saying that whoever wants to hunt the hind or deer. डियर होता है, फीमेल डियर होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, और वो उसका पीछा करते हैं, लोग उसको हंट करते हैं. यहाँ पोएट ने अपने आप को क्या कहा है? स्पीकर अपने आप को हंटर कहता है, और जिसको हंट कर रहा है फीमेल को, उसको वो क्या कहता है? वो एक डियर है. मतलब अपने आप को हंटर कह रहा है, और जिसको वो हंट कर रहा है वो उसका क्या है? वो उसकी बिलव्ड है, वो उसकी हिरन है जो उसको वो हंट कर रहा है. तो यहाँ पे एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है. पोएट अपने आप को लवर कहता है और दूसरी जो हिरन है उसको बिलवर कहता है. आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पोएट ने क्या यूज किया? इमेजेस यूज की हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर्स यूज किया है. हंट क्या है? हंट शिकारी है, एक लवर है. हिंड कौन है? हिरन है. कौन है? उसकी बिलवर्ड है. इसको कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर्स. उसने एक्सटेंडेड मेटाफर यूज की है, जैसे मोस्टली मेटाफिजिकल पोएट्स यूज करते हैं. मतलब जानवर को उसने क्या कंपेयर कर दिया है, उसको फीमेल के साथ कर दिया है. तो हंट एंड हिंड ये दो जो हैं एक्सटेंडेड मेटाफर्स हैं. बट एज फॉर मी, क्लास आई मे नो मोर. कहता है मेरे लिए, मैं तो थक गया हूं. मैंने बड़ा परस्यू किया है, मैंने बड़ा चेज किया है, मैंने हिंड को बड़ा चेज किया है, मैंने डियर को, बिलवर्ड को बड़ा चेज किया है, मैं थक गया हूं. कहता आई मे नो मोर. अब मैं ज्यादा, कहता उसे मजीद हंट नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं. अगर कोई मशवरा लेना चाहता है, कोई मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहता है, कोई मुझसे लेसन हासिल करना चाहता है, चूंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने लव किए हैं, मैं एन बोलन के पीछे रहा हूं, और मैंने ये इस तरह उसे चेज किया है उस हिरन को, मुझे कुछ नहीं मिला. मैं ज्यादा उसे नो मोर, आई एम नो मोर गोइंग टू चेज
मैं अब ज्यादा चेज नहीं कर सकता उसको, ज्यादा उसको परस्यू नहीं कर सकता, उसका ताकब नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। द वेन ट्रेवल्स, कहता है द वेन ट्रेवल्स, ट्रेवल्स का मतलब होता है कि ये वेन का होता है बेसूद। ट्रेवल, ट्रेवल्स का मतलब है हैथ वेरिड मी सो, वेरिड का मतलब होता है जिसने मुझे उकता दिया है, जिससे मैं उकता गया हूं। वेरिड मी सो सोर, यानी मैं उसका पीछा कर कर के, उसके पीछे सफर कर कर के मैं अब, वो कुछ भी नहीं मुझे मिला, और बिल्कुल मेरे लिए वो बेसूद है जो भी मैंने उसका ताकुब किया है। आई एम ऑफ देम दैट फर्दस कमत बिहाइंड। अब देखें, आप किसी के पीछे दौड़े, बात बात आपने देखा होगा डॉग्स जो है ना, डॉग्स और चीता और इस तरह जो लॉयंस होते हैं, वो हिरन के पीछे इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, थक के फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हिरन जो है वो दौड़ता बहुत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो डियर होता है ना, वो इतना, फीमेल डियर इतना फास्ट दौड़ता है, इतना फास्ट दौड़ता है कि उसे कोई भी कैच नहीं कर सकता, लेकिन उसके माइंड में एक चीज उसे पकड़वा देती है। क्योंकि एक फियर जो होता है ना, वो हर जानवर के अंदर भी होता है, ये इसे कहते हैं इमोशनल ब्रेन जो होता है, जो अमिगडिला होता है। अमिगडिला जो होता है ना, वो इन जानवरों के अंदर भी होता है, इनके ब्रेन, इमोशनल किस्म का ब्रेन। तो वो उनके ब्रेन के अंदर बार बार एक खौफ, एक कांस्टेंट फियर आ रहा होता है कि मेरे मेरे ऊपर चीता जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है, लाइन बिल्कुल ऊपर आ गया है। वो दौड़ रही होती है, तो वो पीछे जब कॉन्स्टेंटली देखती है ना कि कितना मैं आगे हूं, वो खौफ उसे पकड़वा देता है। अगर वो वैसे ही दौड़ती रहे, पीछे ना देखे, तो कभी भी शेर, चीता, कोई जानवर उसे नहीं पकड़ सकता। वो फियर जो है ना, वो हमेशा इंसान को फियर मरवा देता है। आई एम ऑफ देम दैट फर्दस कमथ बिहाइंड, मैं कहता उनमें से हूं। आई एम ऑफ देम, मैं उन शिकारियों में से हूं, मैं उन हंटर्स में से हूं जो बड़ी दूर तक उसके पीछे गया है। सर थॉमस वाइट क्या कहता है कि मैं उन शिकारियों में से हूं जो डियर के पीछे इतना दूर तक गया है कि जिसकी कोई हद नहीं, यानी बहुत दूर तक सफर करके फिर थक के वापस आया हूं। यहाँ पे सर थॉमस वाइट क्या कहते हैं कि मैं उस हिरन के पीछे, उस डियर के पीछे बहुत दूर तक गया हूं। ले जी, सर थॉमस वाइट कह रहे हैं कि मैंने इतना ट्रैवल किया है उसके पीछे कि सबसे ज्यादा, यानी आई आई एम ऑफ आई एम ऑफ देम, मैं उनमें से हूं, दैट फर्दस्ट कमत बिहाइंड, जो बहुत ज्यादा दूर तक उनके पीछे गया, यानी हिरन के पीछे गया है और बड़ी दूर से वापस आया। आगे, येट मे आई बाय नो मीन्स माई वेरिड माइंड, और फिर कहता है कि येट मे आई बाय नो मीन्स, लेकिन मैं किसी भी तरीके से, कहता है बाय वेरिड माइंड, मैं किसी भी, कहता है इस थके हुए माइंड के साथ, इस थकावट के साथ, कहता है ड्रॉ फ्रॉम द डियर, ड्रॉ फ्रॉम द डियर बट एज शी फ्लीथ अफोर। वो हमेशा कहता है कि फ्लीथ अफोर का मतलब होता है किसी चीज का निकल जाना, दूर निकल जाना। ड्राफ फ्रॉम द डियर्स, कहता है कि जो डियर है वो मुझसे बहुत दूर चला गया। बट एज शी फ्लीथ अफोर, वो मुझसे, कहता है अफोर का मतलब होता है पहले, वो मुझसे आगे निकल गया। फेंटिंग आई फॉलो, और कहता है कि मैं उसे फॉलो करता रहा। फेंटिंग, थक गया, फेंटिंग का मतलब होता है थक जाना, टायर्ड। कहता है मैं थक गया उसको फॉलो करते करते। आई लीव ऑफ देयर फॉर, आई लीव ऑफ के मैं अब उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। लीव ऑफ, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। देयर फॉर, चूंकि अब थॉमस वाइट उसे क्यों छोड़ना चाहता है? सर थॉमस वाइट इसलिए छोड़ना चाहता है कि उसे पता है कि एक तो शी इज वाइफ ऑफ द किंग, वाइफ ऑफ किंग है, ठीक है। अब वो पहली तरह उसे मिलती भी नहीं है, अब वो पहले जैसी रेजोनेशन भी नहीं रही उसके साथ, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रही, और फिर फियर भी है, खौफ भी है। किसका खौफ है? खौफ है कि कोई ट्रायल ना हो जाए, कहीं वो बादशाह है तो वो ट्रायल ना शुरू कर दे मेरा।
तो बहुत सारे मसले मसाइल सर थॉमस थॉमस वाइट को हैं। सर थॉमस वाइट इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखे हुए है। आगे, सीथन्स इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द विंड। अब ये जो मैंने ये कलर भी किया हुआ है, ये उसने एक पर्सोनिफिकेशन यूज की है। एक लाइफलेस चीज को उसने किया, क्या शो किया है कि वो जैसे जानदार है। मतलब हम हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं। सीथन का मतलब होता है कैच करना। सीथन इन अ नेट आई सी टू होल्ड द विंड। मैंने कहता है कि कोशिश की, मैंने ट्राई किया क्या? इन अ नेट, नेट होता है जाल। मैंने कोशिश किया कि मैं जाल के अंदर हवा को पकड़ लूं। ये एक पर्सोनिफिकेशन है। सीथन्स इन अ नेट, कहता है मैंने नेट में कि क्या पकड़ने की कोशिश की? टू होल्ड द विंड। मैंने विंड को जाल के अंदर पकड़ने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। यानी ऐसी कोशिश की जिसका कोई भी नतीजा नहीं था। हु लिस्ट हर हंट, और जो भी कहता है कि करना चाहता है, शिकार करना चाहता है। हु लिस्ट, लिस्ट हु लिस्ट कि जो चाहता है, लिस्ट वांट चाहता है। हर हंट, जो भी हिरन का शिकार करना चाहता है, जो भी ब्यूटीफुल हिरन, फीमेल हिरन का शिकार करना चाहता है। आई पुट हिम आउट ऑफ डाउट, मैं उसके सारे डाउट्स जो है, पुट पुट हिम आउट ऑफ डाउट, मैं उसके सारे शक दूर करना चाहता हूं। एज वेल एज आई मे स्पेंड हिज टाइम इन वेन। मैंने, कहता है, जहां तक अपना जितना भी वक्त उसके पीछे गुजारा है वो सारा बेसूद रहा। मतलब सर थॉमस वाइट ने उसे टाइम भी दिया, सर थॉमस वाइट ने उसे तोहफे भी दिए होंगे, सर थॉमस वाइट का उसके साथ रिलेशन भी रहा होगा। सर थॉमस वाइट बहुत आगे तक गया है। वो कहता है कि बहुत आगे तक का मतलब है कि उसके साथ एक्सट्रीम किस्म के रिलेशन थे। ऐसे रिलेशन थे कि वो रात को कहता है वो रात को आती, दिन को कहता है दिन को आती। दोनों का एक, वो दोनों एक बोजम फ्रेंड थे, बहुत गहरे दोस्त थे। लेकिन अब तो वो उसे बुलाती नहीं है। सर थॉमस वाइट को सेट असाइड कर दिया है। तो सर थॉमस वाइट कहता है कि मेरे जितना सफर किसी ने नहीं किया उसके पीछे। तो ये दूसरे भी नए आशिक जो उसके पीछे लवर्स हैं, इन लवर्स को मैं नसीहत करना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मिलेगा आपको भी कुछ नहीं। एज वेल एज आई में स्पेंड हिज टाइम्स इन वेन्स। जहां तक, कहता है एज वेल एज, जहां तक कहता है कि मैंने जो भी टाइम उसके पीछे गुजारा वो सारा बेसूद रहा। एज वेल एज, जहां तक, आई में स्पेंड हिज टाइम, जो मैंने टाइम उसके ऊपर गुजारा, इन वेन, सारा बेकार रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। एंड ग्रेवन विद द डायमंड्स इन लेटर प्लेन्स। एंड ग्रेवन, ग्रेवन का मतलब होता है कि कोई चीज जिसको हम कंधाकारी जैसे कर देते हैं, कोई चीज लिख देते हैं, ग्रेव कर देते हैं पत्थर के ऊपर या हीरे के ऊपर, डायमंड के ऊपर, जैसे कोई लिखा होता है। एंड ग्रेवन्स विद डायमंड्स इन लेटर्स प्लेन, और उसके उसके गले में एक डायमंड का हार है, हार पहना हुआ है, और उसके ऊपर कुछ लिखा है। अब ये जो चीज है ये इमेजरी है, ठीक है। ये सारा, ये ग्रेवन, इससे हमारे ना माइंड में एक इमेज बन रही है। जिससे, जिस सेंटेंस से हमारे माइंड में इमेज बने उसको इमेजरी कहते हैं। जिस वर्ड से इमेज बने वो इमेजरी कहते हैं। तो अब उसने कहा है कि इन एंड ग्रेवन विद द डायमंड्स इन द लेटर प्लेन, प्लेन लेटर में उस डायमंड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि उसके गले में है। देयर इज अ रिटन हर फेयर नेक राउंड अबाउट। अब ये सेंशुअस इमेज है। ये कौन सी इमेज है? सेंशुअस, जो हमारी सेंसेस को कैच करती है, सेंशुअस। ये सेंशुअस इमेज है, जॉन कीट्स इस्तेमाल करता था ये। एंड ग्रेवन विद द डायमंड लेटर प्लेन, और उसके गले में एक डायमंड से बना हुआ एक एक हार है। देयर इज रिटन, और उस पे लिखा हुआ है, हर फेयर नेक, इसकी खूबसूरत नेक पे, राउंड अबाउट, जो राउंड अबाउट उसके गले में है, नोली नोली में ठैंगरी, नोली में ठैंगरी। ये एक लैटिन जबान का ये वर्ड, ये सेंटेंस है। और इसका मतलब है, ये इतने का मतलब है, डोंट टच मी। सर थॉमस वाइट को वो क्या कहती है कि डोंट ट्राई टू टच मी, मुझे टच करने की कोशिश ना करना, डोंट टच मी। अब वो उसे क्या कहती है? पहले तो वो उसकी दोस्त थी, उसके पास आती थी, उनके अच्छे रिलेशन थे, दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों एम्ब्रेस होते, एक दूसरे से मिलते, तोहफे तहाइफ देते, उन नेकलेस देते एक दूसरे को, नाइट स्पेंड करते। अब वो उसे क्या कह रही है कि डोंट टच मी।
नॉल नॉली मी ठैंगरी, डोंट टच मी, मुझे टच करने की कोशिश ना करना। क्यों? फॉर सीजर्स आई एम, मैं तो सीजर से बिलोंग करती हूँ। अब यहाँ पे एक उसने अलूजन यूज किया है, एक रेफरेंस यूज किया है, किसका? किसका? आर्खेक लैंग्वेज का, पुरानी लैंग्वेज का। ये तो एक पुरानी लैंग्वेज है आर्खेक, इसे हम आर्खेक वर्ड भी कहते हैं। ऐसे वर्ड जो पुराने एंशियंट वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें लैटिन ग्रीक्स वगैरह इस्तेमाल होती है, और इसको आर्खेक वर्ड भी कहते हैं। आर्खेक वर्ड, तो ये आर्खेक वर्ड्स उसने यूज किए हैं लैटिन के। उसका मतलब है मुझे टच ना करना। फॉर सीजर, ये रेफरेंस है किसका? सीजर का। जूलियस सीजर एक किंग था और उसके ऊपर शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर एक सल्तनत का बादशाह था और वो भी डिक्टेटर था। किस तरह का? जैसे कि हेनरी एट है, तो इसने हेनरी एट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है सीजर के साथ। जिस तरह से सीजर के सामने कोई बोलता, सीजर उसको मौत के घाट उतार देता। सीजर अपनी मर्जी के काम करता, सीजर जो चाहता वो करता, जिस पे चाहे हमले कर देता, एक डिक्टेटर की तरह काम करता। तो हेनरी एट भी वैसे ही फैसले करता है। फॉर सीजर आई एम, मैं सीजर की हूं, मैं किंग की हूं। एंड वाइल्ड फार टू होल्ड दो आई सीम टेम, यानी मैं वाइल्ड फार टू होल्ड, अगर मुझे टच करोगे, यानी मुझे अगर तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हें कैसे लगूंगी? जैसे वाइल्ड है, जैसे कोई जंगली हिरन है। दो आई सीम टैम, यानी मैं एक जंगली हिरन हूं। मैं अपनी शक्लो सूरत से तुम्हें ठैम नजर आती हूँ, बट आई एम अ वाइल्ड काइंड ऑफ डियर। मुझे छूने की कोशिश ना करना, मैं तुम्हें शक्लो सूरत से ही मासूम लगती हूँ, बट आई एम वेरी डेंजरस। So here poet is criticizing that Anne Boleyn is very dangerous, because if I try to touch her, she may call the guards and she can call the Caesar a king, and then they will put me to death. So he's very very careful. So Sir Thomas Wyatt has used many devices. He has used in his poems extended metaphor, alliterations, assonance, enjambments, personification, imagery, metaphors. So what is enjambment? कोई आप में से बताए व्हाट इज इंजेममेंट? इंजेममेंट क्या होता है? इंजेममेंट होता है कि जब एक लाइन में आइडिया अदा नहीं होता, उसका मीनिंग, तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं, वो लाइन एक्सटेंड हो जाती है। जैसे येट में आई बाय नो मीन बाय wearied mind draw from the deer, but as she fleeth afores fainting I follows। तो ये सारी इंजेममेंट है। एक लाइन में जब आइडिया नहीं, मीनिंग्स अदा होते, तो वो उसको हम एक्सटेंड करते हैं दूसरी तीसरी लाइन तक। एक ही सेंस दूसरी तीसरी चौथी लाइन तक भी चली जाए तो उसे इंजैममेंट कहती है। यहां से शुरू होता है इंजैममेंट और यहां तक, यहां से शुरू हुआ है और ये यहां तक आ गया है। ठीक है, बल्कि यहां तक, तो ये सारा इंजैममेंट है। ठीक है, तो जब आइडिया एक लाइन से दूसरी तीसरी चौथी लाइन तक भी चला जाए, काफी लाइंस पर कंसिस्ट करे एक आइडिया का, जो मीनिंग है एक ही आइडिया, उसको इंजेममेंट कहते हैं। और पोएट मोस्टली ये यूज करते हैं। तो इसमें यूज हुआ है एक्सटेंडेड मेटाफर्स, जैसे वो इमेज उसने हिंड और हंट की यूज की है, आप ये बता सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे साउंड्स हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, हैथ, कम्मत, बिहाइंड, अच्छा जी, फेंटिंग फॉलो, यस ये देखें, फेंटिंग फॉलो, ये दोनों ये भी हैं, एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन ऐसी साउंड होती है, आपने यहाँ से तलाश करनी, ऐसी साउंड होती है जो मतलब लाइन में दो तीन तीन चार दफा आ जाए कोई। ठीक है, दो तीन चार दफा अगर एक साउंड आ जाए कॉन्सोनेंट, तो वो क्या होती है? एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट होती है, कॉन्सोनेंस होती है जो कॉन्सोनेंस साउंड जो है वो बार बार आ जाए, और एसोनेंस होती है जो वावल साउंड बार बार आ जाए। जैसे यहाँ पे होगा ये ग्रेवंस, डायमंड्स,
प्लेन्स, ये ए साउंड, ए साउंड जो है, इसमें ए साउंड है, इसमें ए साउंड है, तो ये एसोनेंस है। ठीक है। अगर वावल की साउंड बार बार आ जाए तो वो क्या होती है? एसोनेंस। होप यू गॉट द पॉइंट। और आप ये अब इसको लिख सकती हैं, इसके बारे में थॉमस वाइट के बारे में कुछ बताना है और उससे ये चीजें निकाल देनी है, आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाएगी। इसका, इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल हुआ है। राइमिंग स्कीम इसकी है ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है। फिर ए बी बी ए। लिखी कौन से स्टाइल पे गई है? पेट्रार्कन स्टाइल में। ये कितनी लाइंस हैं? 8। ठीक है। और दूसरी ए बी सी डी ई। ठीक है। सी डी ई। अब ये जो है, ये क्या है? सिस्टेट, ये ऑक्टेव है। ये क्या है? 6 लाइन। आप राइमिंग स्कीम निकाल के उसके बाद उसका स्ट्रक्चर भी बता सकती हैं। ये ऑक्टेव और सिस्टेट में लिखी गई है पोएम। होप यू गॉट द पॉइंट। यहां तक कोई किसी का क्वेश्चन हो तो? मुजम्मल और खदीजा और अक्सा, इसकी समझ आई?